بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک نیو ولاگ میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ آج بھائی شوکت کی پہلی جمعرات ہے تو انتظام وغیرہ کیا جا رہا ہے فاتحہ خانے کے لیے، ختم شریف کے لیے۔ آپ بنانے لگی ہیں، میٹھا بنانے لگی ہیں؟ سوجی کا حلوہ بنانے لگی۔ چلیں پھر قاری صاحب بھی آ جائیں گے ختم شریف کے لیے۔ آپ ذرا ہمت کر کے ہمارے ٹائم کے مطابق جو ہے، ہمارا جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ آپ ہمیں حلوہ تیار کر دیں۔ انشاءاللہ ہو جائے گا اس ٹائم پہ، نا اس سے بھی پہلے ہو جائے گا ہمارا حلوہ تیار۔ زیادہ بیچارے نے سارے برتن، کیونکہ مہمان کافی گھر میں آئے ہوئے ہیں، بار بار پھر برتن استعمال ہوتے ہیں۔ کتنی مرتبہ دھو رہی ہیں اب؟ بھائی صبح کے 2 دفعہ دھل گئے ہیں، یہ تیسری بار ہے۔ جیسے ابھی دھوئے ہیں نا میں نے، تو نا وہ پھل وغیرہ والی تلک کی منڈی آئی ہوئی ہے نا، وہ کاٹ کے نا چاٹ بنا کے نا مرودوں کی، جی وہ کاٹ کے نا بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، وہ خود بھی کھا رہی ہیں۔ جیسے دھوتے ہیں ویسے استعمال ہو جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، تب ظاہر سی بات ہے جب تک مہمان رہیں گے، آنا جانا مہمانوں کا لگا رہے گا، اسی طرح یہ کام ہمارا کم نہیں ہونے والا، یہ پھر کرنا پڑتا ہے۔ آپ لگا لیں، اسے چھکا بولتے ہیں نا؟ یہ بھائی سٹینڈ ہے۔ سٹینڈ، چلو سٹینڈ میں لگا دیں۔ سمیہ بیٹی بھی آ گئی ہے۔ آپ کیا کام کر رہی ہو؟ کیا کام ذمہ لگایا آپ کے؟ مامی نے کہا پانی لے کے آؤ نا۔ کون سی مامی نے؟ مامی نے کس چیز میں، پیالے میں یا؟ وہ میں وہی پوچھ رہی تھی مامی سے، میں نے کہا بڑے برتن میں لے کے آنا یا گلاس میں لے کے آنا؟ چلیں پھر لے جاؤ، میرے خیال سے اس نے ڈالنا ہوگا سوجی کے اندر حلوے میں۔ جی ہمارے روم میں کچھ مسئلہ بنا ہوا تھا، سناؤ وہ ہو گیا ہے مسئلہ جو سمیل وغیرہ آ رہی تھی؟ ہاں جی، اپنی طرف سے تو کوشش کی ہے احمد علی بھائی، اور میں نے ایسی کو نا اوپر سے کھول کر نا اس میں 2 گلہریاں موئی ہوئی تھی، تو اور نا اتنا زیادہ مطلب وہ فل گلی پڑی تھی، اتنا زیادہ گند بھی تھا، تو ایک گلہری کا بچہ نا چھوٹا سا وہ زندہ تھا، وہ نیچے لے کے بھاگ گیا۔ پھر ہم نے اسے کچھ کہا بھی نہیں، ہم نے کہا چھوٹا سا پھر جانے دیا، اور ابھی سمیل ابھی بھی آ رہی ہے، صفا بالکل صفا کے آہستہ آہستہ ختم ہوگی۔ ہاں جو وہ نا پرفیوم جو ہوتا ہے وہ بھی آپ شکریہ سے لے کے ناسی کے بیچ میں مارا ہے، بھی سنا بدبو نہ ختم ہو جائے۔ پہلے چلا رہی تھی، میں نے کہا چلائیں گے نا اس سے جو سمیل ہے نا باہر چلی جائے گی، مگر وہ نا ایسی میں نا تھوڑا مسئلہ آ گیا تو وہ چلا ہی نہیں ایسی، تو پھر ہم نے بند کر دیا۔ چلو وہ تو جب گرمی آئیں گی، جب سولر پلیٹ پہ جب یہ چلانا ہوگا، بشرطِ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے زندگی تو پھر چلا دیں گے، نہیں تو پھر یہ ایسی جانے تو پھر آپ لوگ جانے ہیں جی۔ آپ کو اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ہم تو چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو 100 سال زندگی دے، اور آپ ہمیں اپنے ہاتھ سے جا کے دفنا کریں۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک آمین۔ یہ ہمیں کیا کہتے ہیں نا، جو وائف ہوتی ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ کے ہاتھ سے دفن ہونا تو خوش قسمت ہوتی ہے، ایسے ہم سب سے بڑا سے سنتے ہیں، پر اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آج سے پہلے ہم جائیں۔ اللہ پاک سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ بچوں کا دکھ اور جو خوشی ہوتی ہے، انسان جو ہے نا وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جو ماں باپ دیکھ کر جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور جو دکھ ہوتا ہے نا وہ قبر تک جو ہے نا بھولتا نہیں انسان کو۔ بس بچوں کی فکر ہوتی ہے نا، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ کو فکر ہوتی ہے بھائی وہ ہمارے بغیر کیسے رہیں گے، تو ظاہر بات ہے ماں نہ ہوتا بھی اولاد نہیں رہ سکتی، باپ نہ ہوتا بھی اولاد نہیں رہ سکتی۔ علی بھائی کو بلایا تھا دیگ پکا کے، علی بھائی دم پہ لگا کے چلا گیا ہے، کہہ رہا تھا آدھے گھنٹے بعد میں آؤں گا، دم پہ میں نے لگا دیا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو کام کرنا ہے تو کرا، جب ٹائم اس کا پورا مکمل دم ہو جائے گا پھر آ کے اس کو کھول دینا دم کو۔ حلوہ جی ماشاءاللہ سے الحمدللہ ختم شریف کے لیے ہو چکا ہے تیار، کیونکہ پہلی جمعرات ہے اور میٹھا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا۔ میں نے کہا چلیں بھی حلوہ ساتھ میں کر لیتے ہیں۔ میٹھے چاول اس لیے نہیں بنا سکے کیونکہ پوری فیملی گھر پر آئی ہوئی ہے۔ پہلے پروگرام تھا کہ بھئی پتیلا بنائیں چاول کا، پھر جب دیکھا مہمانوں کو بھئی پتیلا پورا نہیں ہوگا، پھر ہم نے چنے والے چاول بنا لیے۔ ہم نے کہا چلو اب بھی کھا لیں گے، رات کو سوتے ٹائم بھی ہمارے وہی چاول ہو جائیں گے۔ ہاں جی، ہمارے چاول ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ رہی زندگی نا، اگر بھائی شکر کرتے ہیں اگلی جمعرات ادھر ہی ہمارے پاس ہوئی نا، انشاءاللہ میں نا پھر میٹھے چاول میں خود اپنے ہاتھ سے بناؤں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، کڑھائی میں بنا لینا آپ۔ ہاں جی، گڑ والے اگر کہیں گے گڑ والے بنا لیں گے، زردہ کہیں گے میں زردہ انشاءاللہ بنا لوں گی۔ علی بھائی آ گیا ہے، دم کھول لیا بھائی؟ کھولنا ہے ابھی؟ شکر الحمدللہ، دیگ ہماری ہو گئی ہے تیار ختم شریف کے لیے۔ چنے بیچ میں ایڈ کیے تھے، خوشبو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے علی بھائی، جا رہے ہو؟ چلو اللہ پاک خیر کرے، اور دیگ ابھی ادھر ہی پڑی ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اندر بیٹھ کے آرام سے کھا لو۔ نہیں مونا نہیں، آپ کے لے کر آ رہی تھی نا، پھر آپ یہاں آئے نا، وہ یہاں چڑھ کے آپ اس کے ساتھ سے گزر گئے، اس نے پھینک کے مارا مجھے۔ یہ مرود میرے لیے لائی تھی؟ دیو اپنے پاپا کو۔ میرے لیے لائی تھی، چل پھر میں یہ کھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور عمر ٹھیک ہو؟ ہاں جی، شکر ہے اللہ کا، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ شکر اللہ کا۔ سفر تو مجھے لگتا ہے کافی طویل ہو گیا تھا آپ کا، کیونکہ جو شیڈول کا ہمارا سفر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رات کو 10 بجے، 11 بجے یا 9 بجے، آپ نکلے اچانک
जैसे फौत की इत्तला मिली, इन्होंने बेचारों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह जो है जनाजे में शामिल हो जाएं। चेहरा देख लें, जनाजे में तो खैर शामिल नहीं हो चुके थे, लेकिन यह है कि जो है ना चेहरा देख लिया तो कब्रिस्तान पहुंच गए थे। हाँ ले चलो, देग अंदर ले चलो। कारी साहब को फ़ोन किया, वो कह रहे जी मैं आ रहा हूँ। दूध और पानी ख़त्म शरीफ में रखने के लिए तैयार कर लिया है हमने गिलास, और साथ में ख़त्म शरीफ में फ्रूट भी रखे जा रहे हैं, सेब, केले, अमरूद और माल्टे। मैंने ये सुना है कि जो चीज़ हम ख़त्म शरीफ में रखते हैं, हमने बड़ों से सुना है, इसकी जो खुशबू होती है ना, जो हम साले सवाब करते हैं, वो जहाँ पे हम मिल फरमाते हैं ना, वहाँ जाके ये खुशबू पहुँचती है। खा तो हम जाते हैं, ख़त्म शरीफ हो जाता है, हाफिज़ साहब, कारी साहब ख़त्म शरीफ पढ़ देते हैं, इनकी खुशबू जो है ना रूह के पास पहुँचती है, जहाँ पे हम साले सवाब करते हैं। हाँ जी, ये ना ये ख़त्म जो हम दिलवा रहे हैं ना, तो ख़त्म तो हमारा दिल जाएगा, और ये जो हमें ये साले सवाब है ना, ये भाई शौकत को ही मिलेगा, हमें तो नहीं ना मिलेगा। इसकी तो खुशबू पहुँच जाएगी। हाँ जी, खुशबू भी और स्वाद भी उन्हें मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल। ये भाई शौकत ये चीज़ें खा नहीं सकते, लेकिन ये घर वाले ही फिर खा सकते हैं। जी जी। रुमाल मैं 10 लेकर आया था, क्योंकि कुलों वाले दिन हमें रुमाल काफ़ी सारे ज़रूरत थे परातों के ऊपर ढकने के लिए, इसलिए जो है फिर 10 मंगवा लिए थे। बाकी जो बच जाएंगे ना, आपने सबको अच्छी तरह से धो के रख देना है, कहीं पे भी फिर ज़रूरत पड़ते हैं। 10 हैं, 10 ही पूरे कर लेने हैं। ख़त्म शरीफ के लिए जी चावल रखते हैं प्लेट में निकाल कर। चने वाले भी अली भाई ने अच्छे चावल बनाए हैं माशाल्लाह, जब गीला मिलता है ना फिर अच्छे बनाता है। बिस्मिल्लाह, ये ले चलो। अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फी कुल्लि वक़्तिन व हीन। कोशिश फरमा हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला अल्फ़ मकाम अता फरमा। हम सब की दुआओं को इलाही आलमीन उनके हक़ में कबूल फरमा, उनके ज़रिए नजात बना, बख्शिश का सामान बना। इलाही आलमीन खास कर इस माह मुक़द्दस की बरकत का सदक़ा इलाही आलमीन शौकत भाई की कामिल बख्शिश फरमा। इलाही आलमीन उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। हमारे शौकत भाई की रूह को दे, या अल्लाह उनकी कब्र रोशन और मुनव्वर फरमा, उनकी कब्र को राहत निगाह वसी फरमा। बतक़ाज़ा बशरियत या अल्लाह अगर कोई गलती को ताई हो माफ़ फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बिस्मिल्लाह, शुरू करने लगे हैं। ख़त्म शरीफ हो गया है। अल्लाह का नाम लेके पहले मामू जी बच्चों को देंगे। हाँ जी। ज़ारा निकालो, परातें दो, प्लेटें जो हैं बाजियाँ वगैरह जो फैमिली के बड़े मेंबर हैं, ये परात ठीक है ना, 4-4 5-5 बच्चे बैठ जाएंगे। बिस्मिल्लाह डाले ना खुले करके। इस अम्मी जी को इधर दे दिया है, और छोटे बच्चियाँ यहाँ पे 5 को बिठा दिया है, परात में सेटिंग करवा दी है, बच्चों को दे दिया है। बड़े छोटे बच्चे इधर खा रहे हैं। इस साइड पर आपी बैठी है, इस साइड पे चाची बैठी हैं, इस साइड पे दूसरे बच्चे बैठे हैं। इधर नियाब खान पानी पी रही है। प्यास पानी तो नहीं पी रही है, तो चावल निकल आए हैं। वो ना थोड़ा सा पानी मैंने दिया था, नहीं तो कपड़े के ऊपर घेर लेती है, इसलिए मैंने थोड़ी देर वो खत्म हो गया। हाँ माँ, तो पानी क्या है? पानी नहीं है, चावल है। खुशी और दुख ज़िंदगी का हिस्सा है, नेकी के काम भी साथ के साथ करते हैं। हवाला नंबर 33 नंबर मस्जिद में जी मैं पहुंच गया हूं। काफ़ी ये बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद में हैंड पंप नहीं लगा हुआ, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खूबसूरत आप देख सकते हैं कि मस्जिद ये बनी हुई है। और इस मस्जिद का जो बरामदा है ये भी बहुत प्यारा है। सैन भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा खूबसूरत बना हुआ है। बड़ी निफासत के साथ, खूबसूरती के साथ मस्जिद को तामीर किया गया है। पौधे भी लगे हुए हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है और ताज़ा पानी का मज़ा हैंडपम्प में से होता है। जब हैंडपम्प को चलाते हैं तो ताज़ा पानी नीचे से निकल आता है। जो पानी टैंकी में मौजूद होता है वो ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, तो सर्दी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और गर्मी में पानी गर्म होता है। देखें माशाल्लाह से अंदर से मस्जिद बहुत ही प्यारी खूबसूरत बनी हुई है। दरवाजे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे खूबसूरत बने हुए हैं। बरामदा बहुत ही प्यारा, अच्छा काम किया हुआ इस अल्लाह के घर का। इस मस्जिद में अल्लाह के घर में कसीर तादाद में बच्चे और बच्चियाँ कुरान पाक पढ़ते हैं। और हाफिज़ साहब की इंतज़ामिया की तरफ से अपील की जाती है कि आप अल्लाह के घर में हैंडपम्प भी लगवाएं, क्योंकि आगे माह रमज़ान की आमद है। साथ में इस मस्जिद में कालीन की भी अशद ज़रूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 छोटी छोटी दरियाँ कपड़े की जो बनी हुई होती हैं वो बिछी हुई पड़ी हैं। इसी पर ही जो है बच्चे बैठकर कुरान पाक पढ़ रहे हैं।
जब इस मस्जिद में अल्लाह के घर में कालीन बिछ जाएगी तो ये बहुत ही प्यारी मस्जिद खूबसूरत हो जाएगी। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है, साथ में हमें कालीन की भी अशद ज़रूरत है। बच्चियाँ माशाल्लाह से देखें कुरान पाक पढ़ रही हैं। जब यहाँ पे हैंडपम्प लग जाएगा, कालीन बिछ जाएगा तो बच्चे और बच्चियाँ दिल से आपको दुआ देंगे। माह रमज़ान की आमद है, अल्लाह के घरों में हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। हवाला नंबर 34, आप हवाला नंबर देकर भी मस्जिद में हैंडपम्प लगवा सकते हैं, बताकर भी लगवा सकते हैं। तकरीबन जितने भी हम आपको मसाजिद दिखाते हैं ये गांव की मसाजिद होती हैं। इन मस्जिदों में सुबह के टाइम भी बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं और शाम के टाइम भी बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं। इस मस्जिद में आप देख सकते हैं बच्चे कसीर तादाद में बैठे हैं। इस मस्जिद के हाफिज साहब और इंतज़ामिया की तरफ से जो बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया जाता है। हफ्ते में एक मरतबा मीठे का इंतज़ाम किया जाता है। अंदर चलते हैं, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मस्जिद अंदर से बहुत ही प्यारी खूबसूरत बनी हुई है। इस मस्जिद के लिए हमें हैंडपम्प की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि माह रमज़ान की आमद है और इस मस्जिद में हमें कलीन की भी अशद ज़रूरत है। नमाजी आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, आपको बहुत सारा नेक सवाब मिलेगा। एक और अल्लाह के घर में पहुंच गए हैं। मैं अपने वादे के मुताबिक जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई 100 हैंडपम्प की हमें हमारे इलाके में, हमारे गांव में जो मसाजिद होती हैं उनमें हमें हैंडपम्प की ज़रूरत है। इस मस्जिद का हवाला नंबर बनता है 35। आप इस अल्लाह के घर में हैंडपम्प लगवा सकती हैं। जैसा कि आपको पता है आगे माह रमज़ान की आमद है, हमें मस्जिदों में पानी की अशद ज़रूरत है। एक और अल्लाह के घर में पहुँच गए हैं। ये मस्जिद ज़ेरे तामीर है, अभी इस मस्जिद का काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद में हमें सीमेंट की भी ज़रूरत है, बजरी की भी ज़रूरत है, प्लस्तर वगैरह करवाना रहता है। मेन चीज़ जिसके लिए हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि पानी लगाया जाए मस्जिदों में जहाँ पे पानी की अशद ज़रूरत होती है। हैंडपम्प लगाने का हमारा मकसद यही है ताकि रोज़ेदार आए, अल्लाह का प्यारा आए, नमाजी आए और आकर वो हैंडपम्प से ताज़ा पानी ले और वज़ू करे, रब की बारगाह में सजदा सजूद हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद अभी ज़ेरे तामीर है। इस मस्जिद में, जामिया मस्जिद में बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं। अंदर से आप देख सकते हैं कि मस्जिद अभी कच्ची है। इस मस्जिद के भी विंडोज़ का काम होना रहता है, प्लस्तर वगैरह होना रहता है। आप हैंडपम्प के अलावा इस मस्जिद में पंखे भी लगवा सकते हैं, प्लस्तर का काम भी करवा सकते हैं, सीमेंट की बोरी भी दे सकते हैं। जब इस मस्जिद में फर्श डल जाएगा फिर हमें इस मस्जिद के लिए कालीन की भी अशद ज़रूरत होगी। इस टाइम जो चीज़ें ज़रूरत हैं आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद में जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हैंडपम्प की ज़रूरत है, सीमेंट की ज़रूरत है। आप चाहें तो इस मस्जिद को तामीर भी करवा सकते हैं। पानी पिलाना अजीम सदका जारिया है। एक और अल्लाह के घर में पहुंच गए हैं। इस मस्जिद का हवाला नंबर बनता है 37। हवाला बताने का मकसद भी यही होता है, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो जो रेगुलर हमारी वीडियो देखते आ रही हैं, आपको पता होगा कि मैं हर दफ़ा हवाला वगैरह बताता हूं ताकि आपको मस्जिद में काम करवाने में आसानी हो। जो मस्जिद में आपका दिल करे मस्जिद में हैंडपम्प लगवाना चाहें, आप मुझे हवाला देकर, हवाला बताकर अल्लाह के घर में हैंडपम्प लगवा सकते हैं। क्योंकि आपकी भी ख्वाहिश होगी भाई ये मस्जिद मुझे अच्छी लग रही है, ये पसंद आ रही है। वैसे तो सारे अल्लाह के घर हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कहते हैं ना दिल की भी बात होती है। आप हवाला दे के भी हमें बता सकते हैं कि सिद्दीक भाई हमें 37 नंबर की मस्जिद पसंद आई है या इससे पीछे नंबर जो चल रहे हैं वो पसंद आई है, आप हमारा इस मस्जिद में अल्लाह के घर में हैंडपम्प लगा दें तो इंशाअल्लाह ताला हवाले का ये फ़ायदा होगा। अंदर आ गए हैं, आप देख सकते हैं बच्चे बैठे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। यही बच्चे जब हाफिज़ कुरान बनेंगे अपने वालिदैन की बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। और जब हम यहाँ पे पानी लगाएंगे, पानी जब इन बच्चों को मिलेगा, ताज़ा पानी, हैंडपम्प का फ्रेश पानी मिलेगा तो यकीनन आपको ढेरों सवाब मिलेगा। माह रमज़ान की आमद है। मेरा मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के घरों में हैंडपम्प लगाए जाएं, जहाँ पे जो चीज़ ज़रूरत है वो मुकम्मल कर दी जाए। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। बाजी के पास पहुँचा हूँ अमानत लेकर और इस बाजी की बेटी काफ़ी तकलीफ़ में है। दिखाओ बेटा, ये आप देख सकते हैं इस बच्ची की ऐसी तकलीफ़ आई है बेचारी की, सारी उंगलियाँ जो है भूरती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं, काफ़ी तकलीफ़ में है ये बच्ची। इसकी बड़ी बड़ी बेटी है, देखें उंगलियां भी जुदा हो गई हैं यहाँ पे, ये देखें काफ़ी तकलीफ़ में है ये बच्ची। गुर्बत घर में होने की वजह से हालात घर के ऐसे हैं क्योंकि जो कमाई आती है उससे तो घर का ख़र्चा बड़ी मुश्किल से चलता है और घर में जब तकलीफ़ आ जाती है तो बहुत ही मुश्किल होती है और माँ के लिए तो बहुत ही दुख वाली बात होती है क्योंकि ये इसकी बड़ी बड़ी बच्ची है, इसका बेटा नहीं है, 4 इसकी बेटियां हैं जिसमें से ये बड़ी बड़ी बेटी है।
जिसकी हालत ये हो गई है, बीमारी ने इस बच्ची को दिन पे दिन इसको कमज़ोर करती जा रही है। इसके बाल देखें सारे झड़ गए हैं बीमारी की वजह से। तकलीफ उंगलियों को खा गई है, तकलीफ पाँव को खा गई है। इतनी तकलीफ आई है बच्ची पे, दवाई भी बेचारी ने की है, जितने इसके पास पैसे थे इसके ऊपर लगाए हैं। मज़दूर फैमिली है, गरीब फैमिली है, हकदार फैमिली है। और अल्लाह पाक से फरियाद की थी कि अल्लाह पाक कोई नेक फरिश्ता सिफ्त इंसान जो है इस बाजी की मदद कर दे ताकि ये अपनी बेटी का इलाज करवा सके। अल्लाह पाक ने मदद भेजी है। सफ़ीर अब्बास भाई की तरफ से, यूके में आप रहते हैं, अल्लाह पाक ने मदद भेजी है। आपकी बेटी के लिए बाजी दुआ कर दो, भाई के लिए, पूरी फैमिली के लिए। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, सफ़ीर भाई ने इस बच्चे की मदद की है, अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, सफ़ीर भाई की पूरी फैमिली की खैरियत फरमा, कारोबार में बरकत फरमा, रिस्क में बरकत फरमा, सेहत में बरकत फरमा, कारोबार में बरकत फरमा। अल्लाह पाक की राह पे आपने जो खर्च किया है, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपकी बेटी को सेहत दे। ये आपकी बेटी नहीं, ये हमारी भी बेटी है। आप ठीक हो जाओगे, ठीक थी वैसे इंशाअल्लाह, ठीक है ना? दुआ करनी भी, ये बच्ची भी दुआ कर रही है, अल्लाह पाक इसको सेहत दे। भाई के पास पहुंच गया हूं अमानत लेकर। इस भाई को सोरेसिस वायरस की शिकायत है। मेरी बहुत ही प्यारी आप रहती हैं यूके में, आपकी तरफ से 5000 रुपये की मदद की गई है। अल्लाह पाक ने मदद भेजी है। सफ़ीर भाई के लिए दुआ करनी है, आप ही के लिए, पूरी फैमिली के लिए। मैं आप ही के लिए दुआ करता हूँ और अल्लाह आमीन। हाँ, बहुत बहुत दुआ करता हूँ। अल्लाह इनको कुछ भी ना करे। जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ। अल्लाह इनको बहुत कुछ दे। भाई सफ़ीर को, मेरी बहन प्यारी आप ही को, तो इनके दिए हुए पैसे से इंशाअल्लाह मैं सेहतमंद हो जाऊँगा। दुआ करेंगे, मैं भी करूँगा, मेरे बच्चे भी करेंगे, और जितनी भी दुआ करूँ उतनी कम है, क्योंकि ये मेरे इस टाइम बाजू बने हुए हैं। बच्चों के स्कूल का खर्चा है और कहाँ से मैं लूँ? ठीक है, तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इनको बहुत कुछ दे। बाजी नहीं है आज? बाजी आपकी घर वाली किधर है? काम पर गई हुई है मेरी घर वाली ना। 8,000 रुपया कमा वो देते हैं कोठियों वाले, तो 8,000 से आज के दौर में क्या एक दिन का देते हैं? एक महीने? एक माह का देते हैं। एक महीने का 8,000? 8,000 एक माह का देते हैं यार। 8,000 क्या होता है? मेरी तो मेडिसिन भी पूरी नहीं होती ना। चल ना चल वहाँ यार, वहाँ जो था ना। अम्मा के पास जाओ ना। मेरा पुत्र मेरी देर थी मैं काम करण वञणा ना एडे कमला ना ना जुती खींदे न्या तो खींदे से कपड़े भी खींदे इथे था बाई दे ना बैठो, अम्मा का कहना मानते हैं। अम्मी सुन नहीं रहा, कह रहे मैंने नहीं बैठना। आओ बाओ, अम्मा नाल बाओ, बाओ भाई अम्मा कोल आ तो सही। अरे मां मैं दोस्त हूँ आपका। ना वो कह रहा नहीं, मैं दोस्त नहीं है। दुखियारी माँ है बेचारी, नौजवान। अल्लाह पाक ने भेजे ये 5,000 रुपए। आप घरों में काम करती हैं? काफी देर हम बैठे रहे हैं आपके इंतजार में। बर्तन धोने अभी उनके, झाड़ू देनी थी। चलें, ये 5,000 रुपए बहुत प्यारी आपी हैं। इंग्लैंड विच बाजी रांदी है। सफ़ीर भेजन तुहाडे वास्ते तो तुहाडे बच्चियां वास्ते दुआ कर दियो उन्हां वास्ते। आमीन। हाँ जी, आमीन। किथे बीबी? बीबी किथे? बीबी दी शादी थी के गिनन जुलूं? अच्छा जुलदे पे, ठीक है। दुआ कर, खाना दुआ अल्लाह लोग हैं। दुआ करो, दुआ नहीं करनी? करो, दुआ करो, दुआ कर, फिर आपकी दुल्हन लेकर आएंगे। दुआ करो। हंस रहा है। दुल्हन का जब नाम लेता हूँ ना, इसके ना चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और इसको शर्म आ गई है। तेरी दुल्हन लेके आए हैं? ये बेचारी, ये देखें नौजवान बहन है हमारी, दुखों में घिरी हुई माँ। बुढ़ड़ी थी गई बूढ़ी हो गई है ना। चिट्टे वाल थी गई। कैंसर वाले भाई के पास मैं पहुंच गया हूं। इस भाई के हाथ पे कैंसर है और ये बेचारा बहुत ही तकलीफ में मुब्तला है। गरीब घर से है बेचारा। एक तो इसको हाथ में कैंसर है, दूसरा आंखों से मुताज है, देख नहीं सकता, इसकी नजर नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत ही तकलीफ में है। मुझे ये भाई बता रहा था ना रात को नींद आती है ना दिन को नींद आती है, इतना दर्द होता है मैं बता नहीं सकता। और इसका जो
اور اس کا جو یہ ہاتھ کا کینسر ہے یہ آہستہ آہستہ سے بڑھتا جا رہا ہے، اس کے دل والی سائڈ پر جا رہا ہے۔ یہ اللہ پاک سے ہر وقت یہی دعا کرتا رہتا ہے، اللہ پاک کوئی ایسا فرشتہ بھیج دے، اللہ پاک تو نے مجھے تکلیف دی ہے، کوئی ایسا فرشتہ بھیج دے تاکہ یہ میری تکلیف کو کوئی کم کر دے، اتنا پیسے کا انتظام ہو جائے تاکہ اس کا علاج ہو پائے۔ اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اللہ پاک نے مدد کی ہے، میرے ہاتھ میں پیسے موجود ہیں، 500 روپے وجاہت علی بھائی ہیں، ان کی طرف سے مدد کی ہے، بندہ کرتا ہے توفیق کے حساب سے، پاکستان میں بھائی رہتے ہیں، انہوں نے مجھے جیز کیش بھیجا تھا ویڈیو دیکھ کر، اور 10,000 روپے میری بہت ہی پیاری آپی ہیں UK میں رہتی ہیں، ان کی طرف سے اس بھائی کے لیے بھیجے ہیں، سفیر بھائی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ پاک نے مدد کی ہے۔ میرے پیارے بھائی 10,500 روپے اللہ پاک نے بھیجے ہیں آپ کے علاج کے لیے، اور میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے علاج کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے، 15-20 ہزار تو صرف کرائے میں لگ جاتا ہے، یہ بندہ بیچارہ بہت تکلیف میں ہے۔ بھائی دعا کر دو وجاہت بھائی کے لیے، سفیر بھائی کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، اللہ آپ کی اور مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے میرا ویر، جو میری مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت پائے، جو لوگ میری مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرے۔ میں رات کو بھی نہیں سو پاتا ہوں، دن کو بھی نہیں، آپ کے سامنے یہ میرا بازو ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بازو کانپ رہا ہے، یہ میں اپنے آپ سے نہیں، یہ بازو کانپ رہا ہے میرا، اس لیے کہ کمزوری سے کانپ رہا ہے، اس لیے کہ اتنی کی درد ہوتا ہے، زہریلا درد ہے میرا بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میری جس بہن بھائی نے میری مدد کی اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرے۔ آمین آمین آمین۔ بٹھے کی ایک دکھیاری بہن کے پاس پہنچا ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا اس بہن کے بارے میں، بڑے ہی پردے والی بات ہے، پردے میں رکھ کے میں نے بتایا تھا، کیونکہ میرے گھر میں بھی بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ اس کے پیٹ میں رسولی ہو گئی ہے، علاج کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت ہے۔ یہ بٹھے پہ رہتی ہے، سامنے بٹھا آپ دیکھ سکتے ہیں، بٹھے سے بھی قرضہ لیا ہوا ہے، بارشوں کے دوران بھی قرضہ لے کے کھاتے رہے بیچارے، رسولی کے لیے بھی کچھ پیسے لیے تھے دوائی کے لیے، لیکن اس کو آرام نہیں آیا بیچاری کو۔ آپ کے شوہر پہ کتنا قرضہ ہے باجی؟ 1 لاکھ ہوا ہے، شاید کچھ شادی پر لے تھے، جی جی، اس کی شادی ہوئی تو پھر شوہر کی تو میری، تب کچھ قرضہ چڑھ گیا تھا، پھر بارشیں آنے لگ گئی تھی، ہم نے ادھار لے لے کے راشن لیا تھا، تب کوئی قرضہ چڑھ گیا تھا، اب رسولی کی دوائی لے لے کے تو پھر قرضہ چڑھ گیا، اب تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے آپریشن ہوگا۔ اللہ پاک نے مدد کی ہے اس بہن کی، 10,000 روپے کی رقم، میری پیاری آپی UK میں رہتی ہیں، انگلینڈ میں رہتی ہیں، آپ نے 10,000 روپے بھیجے ہیں۔ سفیر بھائی کے لیے، آپی کے لیے دعا کر دو، اللہ پاک نے بھیجا ہے فرشتہ بنا کے، چلو کچھ آپ کو سہارا لگ گیا ہے، اللہ کرے آپ کی اور بھی مدد ہو تاکہ آپ کا آپریشن کا انتظام ہو جائے، دعا کر دو۔ اللہ آپ ہی کو اور بھائی کو بہت دے، اتنا ان کے بچوں کو رشکہ کرے، جس نے ہماری مدد کی، اس نے مجھے زندگی دی ہے، مجھے پیسے نہیں دیے ہیں، میری زندگی ہے، یہ میرا آپریشن ہوگا انشاءاللہ میری بہن، اللہ کرے ان پیسوں سے جو ہے آپ کو صحت یاب ہو جائیں، اور بھی اللہ کرے آپ کی مدد ہو جائے، کیونکہ آپریشن میں کافی پیسہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز کا مجھے بھی اندازہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ چلو وقتی طور پہ آپ کو کچھ سہارا لگ گیا ہے، آپ اپنی دوائی وغیرہ لیں، میرا پروردگار نیلے آسمان والا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نیک صفت انسان آپ کی زندگی میں آ جائے گا جو آپ کی مدد کر دے گا تاکہ آپ کا آپریشن اچھی طرح سے ہو جائے۔